good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 47 of engineering thermodynamics. Okay, so write down these headings. What is the lecture number 47? So what is our today's title? Our today's title is equivalence or violations of a Kelvin and Clausius statements. Okay, this is our today's title, guys. So what is the meaning of equivalence or violation? Violation means does not obey. Violations means does not obey. Does not obey. Okay, means we have not accept the statements. Okay, so it is very IMP topic. It is always very IMP, always asked in exam for 7 marks, okay, or 8 marks sometimes. Yes or no? Yes. So in that topic, what is, we know that this Kelvin and Planck's consider for Kelvin and Planck consider for what is, for a heat engine. Okay, and another is what is, second is what is Clausius, and Clausius consider for what is heat pump or what is refrigerators. So we already learn this Kelvin Planck statements and Clausius statements. This is what is, this both of our second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. Yes or no? Yes. So how these both the statements are equivalence or violation to each other, this will be discussed in that lecture, guys. Yes or no? Yes. So let's, first of all, we violate the which law? We violate the Kelvin's and Planck statements. Yes or no? Yes. So first we consider the violations of Kelvin and what is Planck statements. ठीक है, वायलेशन मतलब ये केल्विन प्लंक ने जो कहा है, ये स्टेटमेंट हमने अभी देखे, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे. वी वायलेट द स्टेटमेंट्स, वी डज नॉट ओबे द स्टेटमेंट्स. अब केल्विन और प्लंक ने क्या कहा था, हमको पता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजिन विच ऑपरेट इन साइकिल. ओके, मीन्स दैट इन विच अ सिंगल रिजर्वायर हीट इज ट्रांसफर टू द हीट इंजिन एंड कन्वर्ट इनटू द वर्क. ये किसने कहा था? केल्विन प्लंक स्टेट ने कहा था कि इम्पॉसिबल है. अब हम उसको वायलेट कर रहे हैं, मतलब उस चीज को हम क्या बना रहे हैं बच्चों? पॉसिबल बना रहे हैं, राइट? So what is we consider here? We consider in this way. Violation of the Kelvin-Planck statement means what is, we consider, suppose this is the our reservoir. This is our reservoir. This reservoir is connected with this heat engine. This is a heat engine, and this heat engine produce the work. What is, we supply the Q. So there is no any another reservoir is here. There is no any another reservoirs. There is no this reservoir will be here. So this is the meaning of what is, this is meaning violation of the Kelvin and Planck statements. तो फिर अब ये क्या है बच्चों? दिस इज द, ये है हमारा व्हाट इज, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. यस और नो? यस. मतलब हम अगर इसको वायलेट करेंगे, वायलेशन ऑफ केल्विन प्लंक स्टेटमेंट को करेंगे, तो फिर कंसीडर क्या होगा बच्चों? कंसीडर होगा यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. और यहाँ पे देखिए वायलेशन में अगर हम केल्विन को, अगर हम केल्विन का अगर वायलेट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्लॉसियस भी क्या हो जाता है? वायलेशन हो जाता है. अगर हम इसको वायलेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये केल्विन प्लंक स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? वायलेशन होता है.
इसलिए इनको क्या कहा है, इसलिए इनको कहा है इक्विवेलेंस, बिकॉज इफ यू वायलेट द वन स्टेटमेंट देन ऑटोमेटिकली अनदर स्टेटमेंट इज वायलेटेड. So that's why it is called as the equivalence of a Kelvin and Clausius statement, guys, here. Okay, so let's we see here how to violate to each other the Kelvin and Planck statements. Okay, so let's I draw the this is our suppose figure number 1, heat engine. I draw this figure. So consider here this is our reservoirs. Yes or no? Yes, this is the reservoir, heat reservoir, heat source, okay, T1. Then from in which what is we violate the Kelvin and Planck statements. So therefore I draw this diagram here, heat engine. This is our heat engine, we know that this is a heat engine. From this reservoir how much heat is supplied? The Q1 amount of heat is supplied to the heat engines, but no Q2 will be transferred to the low temperature reservoirs. I draw their low temperature reservoirs, these ones. Yes or no? Yes, that is called as the heat sink. ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? सिंक बन जाएगा. इसका टेम्परेचर हमारे पास में T2. अब वायलेशन है किसका? केल्विन और प्लंक स्टेटमेंट का. मतलब ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई थी, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ की बच्चों. अब ये Q1 इसको हीट सप्लाई हो गई, तो ये हीट इंजन ने कितना वर्क प्रोड्यूस किया? W वर्क प्रोड्यूस किया. और यहाँ पे W बराबर क्या हो गया? Q1 हो गया. क्यों? क्योंकि हम किसको वायलेट कर रहे हैं? केल्विन और प्लंक को वायलेट कर रहे हैं. अब ये दो सोर्स के बीच में, एक सोर्स T1 और सिंक T2, रिजर्वायर फर्स्ट एंड रिजर्वायर 2, इनके बीच में हमने लगा दिया अभी हीट पंप. अब देखिए यहाँ पे सपोज द कनेक्शन ऑफ द हीट पंप विल बी देयर इज दिस हीट पंप विल बी कनेक्टेड. ओके, अब हीट पंप का क्या काम रहता है कि वो लो टेम्परेचर से हीट निकालता और कहाँ सप्लाई करता है? हाई टेम्परेचर पे. ओके, मीन दिस इज द फंक्शन ऑफ द हीट पंप. अब ये हीट पंप वैसे काम करेगा क्या? नहीं. तो ये हीट पंप को क्या किया कि दोनों को जब हमने कंबाइन किया, हीट इंजन को और हीट पंप को, तो ये हीट इंजन ने जो वर्क प्रोड्यूस किया, ये वर्क हमने सप्लाई किया किसको? ये हीट पंप को सप्लाई किया. कितना वर्क सप्लाई किया बच्चों? W की वैल्यू क्या है? Q1. दोनों को हमने कंबाइन रखा, हीट इंजन को. दिस इज द कंबाइन अरेंजमेंट हियर. कंबाइन अरेंजमेंट, ये हम किसको वायलेट कर रहे हैं? केल्विन प्लंक स्टेटमेंट को. इसलिए Q1 हीट सप्लाई हुई हीट इंजन को, उसने कितना वर्क प्रोड्यूस किया? W बराबर Q1. और ये जो वर्क प्रोड्यूस किया ये किसको जा रहा है? ये हीट पंप को जा रहा है. अब जैसे हीट पंप को ये वर्क सप्लाई होगा, कितना? W, उसकी वैल्यू कितनी है? Q1. तो ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा? Q2. एंड हाउ मच टोटल हीट इज ट्रांसफर टू द this high temperature reservoir? This is transfer the Q1 plus Q2, क्योंकि ये वर्क की वैल्यू क्या है? W. और ये दोनों यहाँ से ऐड होके this one and this added, and how much heat is transferred to the high temperature reservoir with the help of this pump Q1 plus Q2, guys. अब यहाँ पे मैंने किसको वायलेट किया था? ऑटोमेटिक केल्विन और प्लंक को. अब ये दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ. We combine these both the things. देखिए, combine the diagram, combine both system, and it is act as a heat pump. It is act as a heat pump. दोनों को मैंने कंबाइन करने के बाद में ये क्या एक्ट हो रहा है? हीट पंप. तो फिर इसकी डायग्राम देखिए अभी कैसे निकलेंगी. यहाँ पे यू सी द डायग्राम. ओके, व्हाट इज दिस? इज द सोर्स T1
ओके, ये दोनों को कंबाइन करने के बाद में ये क्या बन गया हमारे पास में, हीट पंप बन गया। दिस इज द हीट पंप। ओके, और हीट पंप के नीचे क्या है हमारे पास में, सिंक है, सिंक T2, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए ये हीट पंप कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है यहाँ से, Q2, और ऊपर कितनी सप्लाई कर रहा है बच्चों, Q2। लेकिन इसको कोई वर्क सप्लाई हुआ क्या, नहीं, तभी भी इसने क्या किया, हीट ट्रांसफर की लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को। तो फिर ऑटोमेटिक हमारा कौन सा लॉ वायलेट्स हो गया, वायलेशंस ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिक वायलेट हो गया, क्योंकि क्लॉसियस ने क्या कहा कि हीट ट्रांसफर होगी लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में, लेकिन कब, जब उसको हम एक्सटर्नल वर्क सप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये तुम डायग्राम देखो, इसको हमने कंबाइन करने के बाद में ये हीट पंप को हम कुछ बाहर से एक्सटर्नल वर्क दे रहे क्या, नहीं, तभी भी इसने क्या की कि लो टेम्परेचर से हीट निकाली और कहाँ सप्लाई की, हाई टेम्परेचर में। अब ये दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूँ, देखिए यहाँ पे आफ्टर कंबाइनिंग, अब Q2 का तो कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ से फिर कितनी हीट निकली, Q2। इनको जब मैं कंबाइन करूँगा तो अब देखिए ये Q1 प्लस Q2, ये नीचे आ रही थी सपोज ये Q1, तो ये Q1 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा फिर Q2, और Q2 का आ जा रही बच्चों ऊपर। यहाँ पे अगर ये कंसिडर करेंगे ये दोनों के लिए, तो यहाँ पे क्या है, Q2 प्लस दूसरी Q2 की वैल्यू क्या है, 0, तो ये आ गया सिर्फ Q2। तो लो टेम्परेचर से हीट सप्लाई हुई Q2, किसने सप्लाई की, हीट पंप ने, किसको गई, सोर्स T1 को। मीन्स द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट सप्लाई एनी एक्सटर्नल वर्क, कोई एक्सटर्नल वर्क हमने इसको सप्लाई नहीं किया, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया हमारे पास में, वायलेशंस ऑफ द क्लॉसियस स्टेटमेंट हो गया। ओके, सो दिस इज अवर first explanations. Now we will be discuss the second explanation, what is violations of what is Clausius statement. Now बराबर है। अब हम क्लॉसियस को वायलेट कर रहे हैं, जो क्लॉसियस ने कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट पंप टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ये बनाना इम्पॉसिबल है। कब जाएंगे हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के लिए, जब इसको हम क्या सप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल वर्क सप्लाई करेंगे। यस और नो, यस, तभी यहाँ से हीट निकलेंगी और ऊपर जाएंगी। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, वायलेट्स कर रहे हैं। वायलेट कर रहे हैं मतलब देखिए अभी डायग्राम, सब डायग्राम का खेल है यहाँ पे। ये मैंने बना दिया बच्चों, सोर्स, हीट सोर्स T1। ओके, अब यहाँ पे मैं वायलेशन कर रहा हूँ किसका, क्लॉसियस स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे मैंने बना दिया सबसे पहले हीट पंप, कंसिडर द हीट पंप, बराबर है। और ये नीचे किसके साथ में कनेक्ट रहेगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर्स। दिस इज अवर लो टेम्परेचर रिजर्वायर। हीट सोर्स मतलब ये हो गया हीट सिंक, सिंक बोले तो लो टेम्परेचर्स, ये हो गया हमारा T2। अब हम वायलेशन कर रहे हैं क्लॉसियस को, तो यहाँ से Q2 हीट निकली लो टेम्परेचर से और वो कहाँ चले गई, हाई टेम्परेचर को चले गई बच्चों। कितनी हीट, Q2। इसको कोई वर्क सप्लाई किया क्या, नहीं, कोई भी वर्क नहीं है, तभी भी ऑटोमेटिक हीट जा रही है Q2 अमाउंट फ्रॉम हीट पंप टू द हीट सोर्स T1। अब इसके साथ में हमने देखिए अभी, अब यहाँ पे क्या लगाया मैंने, हीट इंजिन्स। अब यहाँ पे लगाया यही दो रिजर्वायर के बीच में हीट इंजिन्स, बराबर है, यहाँ पे लगा हीट इंजन। अब ये हीट इंजन ये हीट सोर्स से कितनी हीट निकालेगा, Q1 हीट निकालेगा, क्योंकि Q1 क्या रहेगा यहाँ पे, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। यस और नो, यस। अब इसने यहाँ से Q1 हीट निकाली हीट इंजन ने, तो सराउंडिंग में वो हीट रिजेक्ट करेगा। कितनी हीट रिजेक्ट करेगा,
Q2, और ये हीट इंजन क्या प्रोड्यूस करेगा, वर्क भी प्रोड्यूस करेगा। कितना वर्क रहेगा बच्चों इसका, तो नेट वर्क इज हाउ मच, इट इज Q1 माइनस Q2। Q1 क्या है हमारी हीट एडिशन, Q2 है हीट रिजेक्शंस, बराबर है। अब यहाँ पे ये जो पहले हमने किया वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट्स, और दूसरा यहाँ पे एक सिस्टम लगा दी हमने, कौन सी, क्लॉसियस की। इसके अंदर हीट इंजन ने Q1 हीट निकाली सोर्स से, हीट इंजन को सप्लाई हुई, हीट इंजन ने वर्क प्रोड्यूस किया W नेट कितना, Q1 माइनस Q2, और Q2 जो हीट है वो रिजेक्ट होगी कहाँ, लो टेम्परेचर सोर्स सिंक में, लो टेम्परेचर जो है सिंक वो रिजर्वायर में ट्रांसफर होगी। अब ये दोनों को मैंने क्या किया अभी, वी कंबाइन द बोथ द सिस्टम्स, बराबर है। ये दोनों को मैंने कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद में इट एक्ट्स एज अ व्हाट इज हीट इंजन। दोनों को कंबाइन करने के बाद में दिस इज द हीट सोर्स T1। दोनों को कंबाइन करने के बाद में ये हमारे पास में क्या बन गया, हीट इंजन, ऐसा मैं बता रहा हूँ कंबाइन करने के बाद में। अब यहाँ पे देखो बच्चों, कंबाइन करने के बाद में अब यहाँ पे देखिए, ये ऊपर जाने वाली हीट कितनी है, Q2, नीचे आने वाली कितनी है, Q2। कंबाइन करने के बाद में ये क्या आ जाएंगी, ज़ीरो आ जाएंगी, क्योंकि हीट सिंक में से अगर 20 एनर्जी जा रही तो रिजेक्ट भी कितनी हो रही, 20, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। तो ऑटोमेटिक जो नीचे जाने वाली हीट है, ये सिंक में कुछ हमारे पास में है क्या, अभी नहीं, ये तो 0 हो गई, बराबर है। अब हीट इंजन ने फिर W नेट कितना प्रोड्यूस किया, यहाँ पे देखिए W नेट प्रोड्यूस किया उसने, हाउ मच, Q1 माइनस Q2, बराबर है। और हीट इंजन को भी सप्लाई कितना हो रहा देखिए अभी। अब Q1 की वैल्यू तो मैंने Q2 से ज़्यादा बताई, तो ये Q1 आ गया कंबाइन करने के बाद में, और ये दूसरी आ गई Q2। मतलब जितनी हीट हमने हीट इंजन को सप्लाई की उतना ही हमारा क्या हुआ, W नेट हुआ। मतलब Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू द W नेट। अब यहाँ पे कोई रिजर्वायर भी नहीं है, क्योंकि कंबाइन करने के बाद में नीचे के रिजर्वायर के साथ में कोई हीट इंटरेक्शन है ही नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, 0 हो गया। तो फिर हमको ऐसा हीट इंजन मिला यहाँ पे कि जो एक ही रिजर्वायर पे काम कर रहा है और वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W नेट, मीन्स हीट एडिशन इज इक्वल टू द नेट वर्क आउटपुट बाय द हीट इंजिन्स। अब ऐसा अगर हमको मिलेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिर क्या वायलेट हो जाएगा, वायलेशन ऑफ केल्विन प्लंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लंक स्टेटमेंट। क्योंकि केल्विन प्लंक ने तो कहा था कि ऐसा बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। लेकिन हम जब दोनों को कंसिडर कर रहे हैं और कंबाइन कर रहे हैं, किसको वायलेट करके, क्लॉसियस को, तो ये हमको ये डायग्राम मिली, जिसके अंदर क्या हो गया, ऑटोमेटिक वायलेशन ऑफ अ केल्विन प्लंक स्टेटमेंट हो गया गाइस। ओके, सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशंस अबाउट द वायलेशन ऑफ अ क्लॉसियस एंड केल्विन स्टेटमेंट्स। अब सेकंड टॉपिक डिस्कस करते गाइस, वेरी वेरी IMP, दैट इज कॉल्ड एज द परपेचुअल मोशन सेकंड काइंड, PM2 मीन्स परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन, perpetual motion machine of the second kind, बराबर है। अब पहली वाली जो है हमको बताया बच्चों, अब ये परपेचुअल मोशन ऑफ द मशीन सेकंड काइंड मतलब क्या है हमारा, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यस और नो, यस, ये हमारा परपेचुअल मोशन सेकंड काइंड है। अब क्या है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ हमारा है कि एक ही रिजर्वायर है हमारे पास में,
that is the this is the source T, यह सप्लाई किसको होगा, हीट इंजन को, क्यू हीट इसने सप्लाई की, तो ये हीट इंजन कितना वर्क प्रोड्यूस करेगा, डब्ल्यू, जिसकी वैल्यू भी क्या रहेंगी, क्यू। तो ये जो फिगर है दिस इज द पी एम 2 गाइस, और दूसरा क्या नाम है इसका, आर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बराबर है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल टू ईच अदर्स, मतलब Q का कन्वर्शन काय में होगा, W में, और W का कन्वर्शन काय में होगा, Q में। ऐसा कौन बता रहा हमारे को, फर्स्ट लॉ बता रहा, बराबर है। मीन्स बोथ आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल टू ईच अदर्स। ओके, अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बनता है परपेचुअल मोशन का, देखिए अभी व्हाट इज द स्टेटमेंट्स, इफ द टोटल हीट one minute, I erase these things. Okay, so what is, if the total heat okay, what is the statement very IMP, if the total heat supplied if the total heat supplied, ये total heat supplied हो रही, if the total heat supplied is converted into net work by any machines, then its efficiency would be what is 100%, and it is called as what is PM2, perpetual motion machine of a second kind guys। मतलब जिसकी इफिशियंसी क्या है, 100% है, ऐसी जो मशीन है हमारी है PM2 काइंड्स गाइस बच्चों, बराबर है। मतलब दुनिया में अगर ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल है क्या, नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई भी मशीन 100% इफिशियंट है क्या, नहीं, कोई भी मशीन 100% इफिशियंट नहीं है गाइज। सो दिस इज द वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशंस। सो लेट्स वी understand very better way by considering the one examples in a perpetual motion 2 guys। So look at here, I will explain the example. So which example we consider the here thermal power plant example guys। Okay, so we know the thermal power plant, how it is work, we will be discussed very detail in a 4th sem. The name of the subject is energy conversion 1. So here we will be discuss the some points, and we know the components of the thermal power plant. We already have the idea what are the main components. So look at the thermal power plant diagram I am consider here in perpetual motion 2, PM2 guys। So what is here, I draw the one diagram, that is the boiler. So this is the boiler, okay guys। From the boiler the steam is produced, this steam is strike where, it is strike on the turbines, there is a turbines will be there, okay। So this is the turbines, okay, this turbine produce the work, that is the W net guys। अब ये टर्बाइन जो है, अब देखिए ये टर्बाइन को मैंने कनेक्ट कर डाला शाफ्ट से, दिस इज द शाफ्ट, दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड विथ व्हाट इज, इट इज कनेक्टेड विथ अ पंप, okay, and this pump will be pump the water in a boilers। So this is the pump। बाद में यहाँ पे देखिए अभी क्या एडजस्टमेंट की मैंने, अब
बॉयलर है हमारे पास में, पंप आ गया हमारे पास में, टरबाइन आ गया, तो दूसरा क्या रहता बच्चों यहाँ पे, कंडेंसर। अब कंडेंसर को मैंने निकाल डाला यहाँ से। कंडेंसर जो कंपोनेंट है, कंडेंसर इज अ व्हाट इज हीट रिजेक्शन डिवाइस, हीट रिजेक्शंस, हीट रिजेक्शन डिवाइस, बराबर है। कंडेंसर हमेशा क्या करता है, हीट रिजेक्ट करता है। यहाँ पे क्या लगा रहता है, कंडेंसर लगा रहता है। ये टरबाइन में से जब स्टीम आएंगी वो कहाँ जाएंगी बच्चों, ये कंडेंसर में। सपोज दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कंडेंसर। कंडेंसर में से हीट क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट, तो ये स्टीम काय में कन्वर्ट हो जाएंगी, वाटर के अंदर। फिर ये पंप का यूज़ करके ये वाटर हम कहाँ फिलअप करते हैं, बॉयलर में। बॉयलर में क्या होती है, हीट एडिशंस, ओके। और फिर ये बॉयलर काय में कन्वर्ट कर देता है वाटर को, स्टीम को। ये स्टीम स्ट्राइक होती है टरबाइन पे एंड जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे देखिए ये सिस्टम को हम बना रहे हैं PM2 परपेचुअल मोशन। तो ये जो मैंने कंडेंसर बना दिया, ये कंडेंसर को यहाँ से मैंने निकाल डाला, ओके। So after remove the condensers, so what is here, you see I erase these portions। क्यों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ये देख लो, क्योंकि कंडेंसर को चलाने के लिए जो हमको हीट होना, देयर इज रिक्वायर्ड द मोर देन हाफ ऑफ हीट्स, मोर देन हाफ ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट द हीट फ्रॉम कंडेंसर्स। मतलब मोर देन हाफ जो हीट है वो रिजेक्ट हो जाएंगी काय में से, कंडेंसर में से। अब हीट अगर रिजेक्ट हो गई तो हमारी इफिशियंसी क्या रहती है, एकदम लेस रहती है पावर प्लांट की। इट इज़ 40 और 45%। इफिशियंसी कितना होना हमको, 100% होगा। 100% अगर होगा तभी ये क्या कहलाएंगी, PMM2 कहलाएंगी बच्चों, बराबर है। तो 100% इफिशियंट बनाने के लिए कंडेंसर को मैं निकालने वाला हूँ यहाँ से। तो देखिए I have to remove these portions। कंडेंसर, कंडेंसर को ही मैंने निकाल डाला यहाँ से, बराबर है। किसमें, PM2 में गाइस। अब कंडेंसर को ही निकाल डाला, तो फिर अब ये जो टरबाइन में से क्या आ रहा, डायरेक्ट हमारे पास में स्टीम आ रही। ये स्टीम हमने कहाँ सप्लाई की बच्चों, डायरेक्टली सप्लाई टू द पंप। यस और नो, यस, बराबर है। तो अब देखिए ये पंप को कौन चला रहा है, ये टरबाइन्स। ये टरबाइन जब घूमेगा तो उसके साथ में ये पंप घूमेगा। उसके बाद में ये जो स्टीम जो रिजेक्ट हो रही थी, ये हमने रिजेक्ट की क्या, नहीं, ये पंप के थ्रू हमने कहाँ सप्लाई की, बॉयलर में। बॉयलर में जाने के बाद में ये स्टीम वापस कहाँ आ गई, टरबाइन में। मतलब यहाँ पे कोई भी प्रकार का हीट रिजेक्शंस नहीं है, हीट रिजेक्शन नॉट हियर। यस और नो, यस। तो फिर ये मशीन कौन सी कहलाएंगी, PMM2, क्योंकि इसकी इफिशियंसी अभी क्या बन जाएंगी बच्चों, 100%, बिकॉज देर इज नो एनी हीट लॉस विल बी देयर्स। यस और नो, यस। मतलब यहाँ पे देखिए अभी क्या बता रहा हूँ मैं। सो इट इज थॉट दैट द कंडेंसर रिजेक्ट्स द मोर देन हाफ ऑफ हीट सप्लाइड एज अ वेस्ट। लेट सच स्टीम पावर प्लांट विल बी plant where all the heat transfer into the boiler will be convert into the work by the turbines। मतलब बॉयलर को हमने जितनी भी हीट सप्लाई की, ये क्यों, उसने क्या में कन्वर्ट कर डाला, वर्क में। जितनी भी बॉयलर को हीट सप्लाई होगी उसने पूरी की पूरी क्या स्टीम बना ली, और इस स्टीम ने क्या प्रोड्यूस किया, वर्क। तो जितनी हीट सप्लाई हुई उतना ही हमको क्या मिला, वर्क। ऐसा हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, ओके। तो फिर ऐसा अगर हो जाएगा तो इफिशियंसी क्या आ गया हमारे पास में, 100%। सच टाइप ऑफ द मशीन इट इज कॉल्ड एज द PM2 मशीन्स। और ये ऑपरेट भी कैसे हो रही बच्चों, इट इज ऑपरेट इन आल्सो इन साइक्लिक प्रोसेस। अब ये साइकिल देखो, ये साइकिल लगी है यहाँ से, ये वापस आ रही है, वापस स्टीम चलेगी। मतलब यहाँ पे तुमको ऐसी कंप्लीट क्लोज साइकिल भी दिख रही, मतलब इट फॉलो द साइक्लिक कंडीशन आल्सो। ये देखिए पूरा साइक्लिक चल रहा है प्रोसेस, और Q बराबर WP हो गया। तो ऐसी अगर मशीन हमने बना ली तो दैट इज द PM2 मशीन गाइज, ओके। सो बट एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल्स।
Why not possibles? Because we know that so Q is a low grade energy, and work is a what is high grade energy, हाई ग्रेड एनर्जी. तो Q का कन्वर्शन W में कभी होगा क्या? कभी नहीं होगा. W का कन्वर्शन Q में हो जाएगा, लेकिन Q का कन्वर्शन W में कभी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हीट क्या है हमारी? लो ग्रेड एनर्जी है, और वर्क क्या है? हाई ग्रेड एनर्जी. So therefore it is impossible to make the perpetual motion machine second kind, guys. Yes or no? Yes. So this is very easy what I am explain here. So I stop here, guys. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.